Hello, my dearest friends. Welcome to all of you in my YouTube channel Earth Classes. My dearest friends, today I, Ajay Kumar Misra, once again I am taking your class of spoken English. मेरे प्यारे बच्चों, earlier we have finished a lot of a structure and some conjunctions words also, so that you can join the sentences. My dearest friends, today we are going to learn helping verb shall and will. It is also belongs to modal helping verb. So my dearest friends, today I am going to start modal helping verb. What is the role of modal helping verb in our common spoken English, and how will they use in our everyday walk of life? मेरे प्यारे बच्चों, we have already finished the helping verb, verb to be, verb to do, verb to have. Verb to be it means is, am, are, was, were. Verb to do का मतलब do, does, did, and verb to have का मतलब has, have, had. Now अब आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं. नाउ यू कैन यूटिलाइज इन योर कॉमन स्पोकन इंग्लिश. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करूंगा और वी विल नो हाउ आर दे helping us in our common spoken English. Please come and observe constantly in my class. Today I am taking your 13th classes. 13वीं क्लास है बेटा, और मैं आपको बोल चुका हूँ कि 45 डेज का ये क्लास है. तो 13वें दिन की क्लास में मैं आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ. व्हाट इज मॉडल हेल्पिंग वर्ब? What is modal helping verb? Modal helping verb क्या होता है? Modal helping verb is a helping verb which is used to help the sentences in different form, and it is used as a main verb to express the possibility, the sentence of possibility, capability, or you can say ability, permission, advice, and obligation. Modal helping verb, they are different in numbers like can, could, should, would, may, might, must, shall, and will. They also belong to modal helping verb. But commonly you can say it is used in future sentences also. In modern English grammar there is no future sentence, there is no future tenses. Future tense
नहीं है, ऐसा बोलता है। बट द वर्क विच विल बी फिनिश्ड इन नियर फ्यूचर, दैट इज नोन एज फ्यूचर टेंस। उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। एंड इन फ्यूचर टेंस वी यूज शैल एंड विल। इट इज ऑल्सो यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब फॉर मेकिंग ए क्वेश्चन, negative question, affirmative question for future tenses, and it is used as also a modal helping verb. So my dear friends, modal helping verb always takes V1, वो हमेशा V1 लेता है। if it is used with the have plus V3, it shows the past modal, it is known as past modal helping verb and it expresses the past sentences. Now come, can, could, should, would, can, could, may, might, shall, will, should, would, dare, need. These are modal helping verbs. So what is modal helping verb? You can define modal helping verb. Modal helping verb are the helping verb like above, mentioned. Modal verbs add meaning modal helping verbs add meaning to the main verb. The main verb in a sentence, in a sentence by expressing possibility, ability, permission, advice and obligation. My dear friends, modal helping verb जो होता है, helping verb are the helping verb like above mentioned, and modal helping verb add meaning to the main verb. मेन वर्ब के रूप में भी इसको ऐड करते हैं इन ए सेंटेंस बाय एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस एंड ऑब्लिगेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. इट ऑलवेज टेक्स V1.
it always takes V1, ये हमेशा V1 होता है, V2, V3, V4 एंड V5 का यूज नहीं करते. So my dear friends, today we will learn about the shall and will because they are used for modal helping verb and it expresses the future sentence, simple formal future sentences also, and now it expresses about the future tenses also. So my dear friends, earlier we have already finished the present and past. Now I would like to finish the future tenses also using the modal helping verb shall and will, and after all the complete tenses of all parts will be finished, and now we will go through the revision of at a glance of tenses in one class, and then we will proceed the next modal helping verb so that our spoken English can be a smart more and more. Now my dear friends, first of all write down so that I can proceed the next. Today we will learn shall and will, or you can say future tense, because shall and will, it shows the future sentences, simple formal future sentences, and it is also used for making the question of simple formal future tenses. यूज ऑफ शैल एंड विल. तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले शैल और विल, दे आर यूज फॉर एक्सप्रेस द सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस, affirmative, negative, and it also support for making the simple future tenses questions. Shall and will are used to express the shall and will are used to express the simple future sentences, and it is also used for making the future sentences, सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस के क्वेश्चन बनाने के लिए भी शैल और विल का यूज हम लोग करते हैं. नाउ आई के साथ शैल का यूज करते हैं, वी के साथ शैल का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, यू के साथ विल का यूज होगा, दे विल का होगा, सिंगुलर के साथ विल का यूज करेंगे, नाउ इन दिस फॉर्म वी यूज शैल एंड विल.
सिंपल it is used for making those sentences which ends with in Hindi गा गे गी। वह वाक्य जो सिंपल हिंदी मीनिंग गा गे गी से इंड करता है, उस तरह के वाक्य को हम लोग फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडिफिनिट सेंटेंस बोलते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं, और उसे हम शैल और विल का यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं घर जाऊंगा, आप कहानी सुनाओगे, भारत विजयी होगा, तो ये सिंपल सेंटेंस है। तुम घर कल नहीं जाओगे, ये सिंपल, ये अगर फ्यूचर में बनाना है तो शैल विल का यूज करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जस्ट वी कैन यूज इन प्रेजेंट ऑल्सो। तुम कल घर नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग होम टुमारो, यू आर नॉट गोइंग होम टुमारो, तुम कल घर नहीं जा रहे हो। ये कल टुमारो आने वाला है, फ्यूचर है, बट जस्ट वी आर यूजिंग इन अ प्रेजेंट। बट माय डियर स्टूडेंट्स, शैल विल का यूज करना हो सिंपल में, तो वो हम लोग वहां पर क्या कहलाएंगे, यू वांट टू गो होम टुमारो, यू वांट टू गो होम टुमारो, या यू विल नॉट गो होम टुमारो, तुम कल घर नहीं जाओगे। और इसी को हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से जो ग्रामेरियन है, जो टेंस के जानने, जो इंग्लिश के लिटरेचर के महारथ लोग हैं, नाउ दे आर सेइंग देयर इज नो फ्यूचर टेंस बिकॉज ऑल फ्यूचर tenses or sentences are used in present. But my dear students, we are learning a spoken English. In various cases we have to use shall and will, so it is important to know where will I use shall and will. So in simple future sentences or tenses we use shall and will. Now मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे हमारे कॉमन स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंस आते हैं और उसको कैसे शैल और विल को लेकर हम यूज करेंगे और उसे बनाएंगे। कम टू द पॉइंट। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर? तो सिंपल गागे की का सेंटेंस होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस होगा। दो तीन तरह से मैं हम लोगों को ये पूरा फ्यूचर देखेंगे। तुम खाओगे, तुम जाओगे, तुम गाते रहोगे। मैं जब तुम कल वहां जाओगे तो तुम मुझे वहां पाओगे, मैं वहां उपस्थित होऊंगा, आई विल बी देयर। जब तक आप आएंगे वो समाप्त कर चुका होगा। तो इस तरह से विल हैव प्लस V3 का यूज करते हैं हम लोग, और शैल हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। तो नाउ वी विल लर्न स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल फ्यूचर टेंस वी विल लर्न, इट मीन्स यूज ऑफ शैल एंड विल। नाउ द व्हाट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर सेंटेंस वो वाक्य जो सिंपली गा गे गी से इंड करता है, इस तरह के वाक्य को हम क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर बोलते हैं।
सिंपल फ्यूचर इंडिफिनिट सेंटेंस बोलते हैं। इसका पहला होता है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। यहाँ पे हर कंडीशन में, इन ऑल कंडीशन, वर्ब मेन वर्ब जो होगा वो V1 में होगा। जैसे वह घर जाएगा तो ही विल गो, मैं घर जाऊंगा तो आई शैल गो। हम लोग खुशियां मनाएंगे, वी शैल सेलिब्रेट या वी शैल celebrate the happiness। We shall invite you, हम लोग आपको निमंत्रित करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस में हमेशा V1 का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई शैल गो होम, मैं घर जाऊंगा। सर हम लोग कल नहीं पढ़ेंगे। तो यहां जब नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस में जब इंस करेगा गागेगी इसके साथ, और जब उसके साथ सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हो तो उस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। नाउ वी विल सी द सेकेंड। तो सिंपली यहाँ क्या यूज होता है सेंटेंस में? हम नोट का यूज करते हैं। सिंपली सेंटेंस में क्या होता है? नोट का यूज होता है। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। This is your the structure. Now I shall not come tomorrow. I shall not come tomorrow. We shall not go home. हम लोग घर नहीं जाएंगे। लॉकडाउन में हम लोग घर नहीं जाएंगे। हम लोग अरवल में ही रहेंगे। We shall not go home. We will reside in अरवल। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव, जब नेगेटिव रहेगा तो शैल विल के बाद हम नोट लगा देते हैं। दे विल नॉट परफॉर्म, वो परफॉर्म नहीं करेगा। स्टेज प्रोग्राम में वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। दे विल नॉट परफॉर्म इन स्टेज प्रोग्राम। क्वेश्चंस बनाएंगे तो वे हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं? आगे लाते हैं। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल क्या होगा? क्या तुम मेरे यहाँ आओगे? क्या तुम मेरे यहाँ आओगे? यस सर, मैं आऊंगा। विल यू कम? विल यू कम माई होम? विल यू कम माई होम? क्या तुम मेरे घर आओगे? आंसर देना है तो यस सर आई विल कम, यस सर आई शैल कम। Sometimes if you use will also with I or we, don't worry, shall has been already removed and instead of shall we are allowed to use will with I and we also। In common spoken English में बेटे shall
की जगह पर आप विल भी यूज करते हैं तो सेंटेंस गलत नहीं है, उसके थोड़ी बहुत सेंस का प्रॉब्लम आएगा, बट इट विल बी ओके इन कॉमन स्पोकन इंग्लिश. सो यू कैन यूज ऑल्सो will instead of shall and instead of shall with I and we. Negative questions. So what is the negative questions? When sentence ends with गागेगी and in starting क्या, in Hindi, and in the middle of the sentence not is used, then the sentence belongs to negative question of future simple future. क्या तुम गाना नहीं सुनाओगे? क्या तुम गाना नहीं सुनाओगे? क्या आप खाना नहीं खाएंगे? मैं आपके यहाँ गया और आपके यहाँ रुकने के बाद थोड़ी देर के बाद आप बोलते हैं कि सर खाना लगा रहा हूँ, जस्ट सर आई एम ऑफरिंग मील, देन आई एम टेलिंग आई विल नॉट टेक लंच. वही सर आप खाना नहीं खाओगे तो विल यू नॉट टेक लंच. स्ट्रक्चर इसका होगा विल या शैल plus subject plus not plus V1 plus object plus sign of interrogation. Example: will you not take lunch? Will you not take lunch? क्या तुम खाना नहीं खाओगे? No sir. Why? Actually, I have had, sir. I have taken lunch. I have heavy breakfast. So I am not feeling appetite. इससे मुझे भूख नहीं लग रही है. तो मेरे प्यारे बच्चों, जो टेंस है, टेंस पे सबसे पहले हम लोगों को कमांड करना है, एंड देन आफ्टर वी हैव टू कमांड ओवर द मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और तब आपका स्पोकन फास्ट हो जाएगा. And then it is required to supply you for correcting your sentences, so that we will give you the knowledge of grammar and different words, so that you can utilize in your common spoken English. Now मेरे प्यारे बच्चों देखिए, क्या तुम नहीं जाओगे? क्या तुम will you not go? ठीक है तो मैं जाऊंगा. ओके, आई विल गो देयर, आई शैल गो देयर. तो इस तरह से सेंटेंस बनाना है. नाउ 1 2 3 4 5th and 6th, that is WH family questions. Now you can see here. WH फैमिली अफर्मेटिव क्वेश्चन. WH फैमिली अफर्मेटिव क्वेश्चंस क्या होता है? सिंपल अफर्मेटिव क्वेश्चंस के आगे हम WH फैमिली लगा देते हैं तो क्वेश्चंस क्या बनता है? मेरा WH फैमिली क्वेश्चन बनता है. आप कल कहाँ जाओगे? आप कल कहाँ जाओगे? आपके कल का क्या प्रोग्राम है, या कल का क्या प्रोग्राम होगा? नाउ WH family words plus a structure of affirmative questions. Example: आप कल कहाँ जाओगे? तो WH family क्वेश्चन है, तो हम सिंपल बनाएंगे कि
आप कल कहाँ जाओगे, मतलब क्या कल जाओगे, क्या कल आप जाओगे। विल यू गो टुमारो, विल यू गो टुमारो, यहां पर सिंपल लगा देंगे आप। वेयर, वेयर विल यू गो टुमारो, कल आप कहाँ जाओगे। आप क्या खाएंगे, पराठा या पूड़ी या सब्जी, पराठा पूड़ी या चावल खाएंगे, तो आप क्या खाएंगे, तो वो सिंपल बनाएंगे, क्या आप खाएंगे। विल यू टेक, विल यू ईट, विल यू ईट, क्या आप खाएंगे, आप क्या खाएंगे, तो व्हाट विल यू, सिंपल लगा देंगे आप। व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन में सिर्फ डब्ल्यू फैमिली लगा देना है। अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा, और निगेटिव है तो निगेटिव क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा। नाउ निगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव क्वेश्चंस। देखेंगे नाउ हाउ इट विल फॉर्म। तुम कल क्यों नहीं जाओगे, तुम कल क्यों नहीं जाओगे। विल यू नॉट गो टुमारो, यहां लगा देंगे वाई। वाई विल यू नॉट गो टुमारो, तुम कल क्यों नहीं जाओगे। आप मुझे कब नहीं बुलाओगे। When will you not call, when will you not call, when will you not call, तुम कब नहीं बुलाओगे, देखता हूं, I'll see, तुमको मुझे बुलाना होगा, you will have to call me. This is the fourth section, my dear friends. After that, step by step, I just give you the knowledge also. What is the fourth section? How will you make it? But first of all, we have to command over the simple future, command over the tenses, and then modal. And now step by step, which is very most common structure of a spoken English, we will learn. Now, what shall I not take in lunch? मैं खाना में क्या नहीं लूंगा, मैं खाने में क्या नहीं लूंगा, तो मैं खाने में चावल नहीं लूंगा। आई वोंट, आप खाने में क्या नहीं लेंगे, आप खाने में क्या नहीं लेंगे, तो मैं खाने में चावल नहीं लूंगा, तो आई विल नॉट टेक राइस इन लंच। तो इन दिस वे there are various structure. We have learned the 6 types of structure, my dear friends. Now we have to use in our common spoken English.
which belongs to simple future sentences, and we will use these structures. And first we will write on the copy and just we will do practice so that it will be confirmed. And now these structures can be used in our common spoken English. तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट 14th क्लास में हम लोग इसके आगे चलेंगे, मॉडल हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे। लेकिन यहाँ तक अगर आप मेरे फर्स्ट वीडियो से लेकर के 14th क्लास तक आप अटेंड नहीं किए हो तो मेरे स्पोकन इंग्लिश पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को आप जरूर देखें, लोगों को दिखाएं और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब को करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, सो दैट कि व्हेन आई in live class you can get the notification also, and just you can attend in my live class, my dear friends. Thank you for today's class.